ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خیر مقدم ہیں۔ میں ہوں سعید ہاشمی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ اس وقت ہم لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند سے ضلع کرگل کے چند اہم ترقیاتی امور و دیگر عوامی مسائل کو لے کر خصوصی ملاقات کر رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے وائس آف لداخ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر، باضابطہ آپ سے چند سوال آپ کے سامنے ہیں۔ تو سر، ضلع کرگل کی محدود ورکنگ سیزن کو مد نظر رکھ کر فنڈز کو 100% تک خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ضلع کرگل پورے لداخ کا سیزن جو ہے محدود ہوتا ہے، اور اس سال کیا ہو گیا، ہمارا الیکشن کی وجہ سے ہمارے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن تھا، تو اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 دن پہلے ہی ہمارا فنڈز جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کر دیا، اس کو نا فنڈ سینکشن ہو گئے لداخ کے لیے۔ تو وہاں سے آنے میں کچھ یہ دن لگیں گے، اور جہاں تک ہمارے آن گوئنگ ہمارے ورکس ہے اس پہ کام چل رہا ہے، مگر جو نئے شروع کرنا ہے تو اس میں یو ٹی لداخ سے ابھی ہمیں پورے فنڈز کا وہ آیا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہمیں امید ہے وہ سب ہمیں ریلیز ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 2-3 بار ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے انجینئرس چاہے ہمارے ایس سی سے یا چیف انجینئر ہو یا ایس ای ہو، دونوں آر این بی اور پی ایچ ای ایریگیشن کے، باقی یا آر ای ڈبلیو والے ہوں یا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان سب سے ہم نے 2-3 بار میٹنگ کیا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی فنڈس ہو، ایک تو ٹائم پہ ٹینڈرنگ پروسیس بہت جلدی ہو، اور ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد کام وداؤٹ ڈیلے کہیں پہ آفس میں کاغذ رک کے نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم اگلے کچھ دنوں تک نئے کام بھی پورا لے پائیں گے، کیونکہ اس میں فنڈ واگزار ہونے میں تھوڑا سا یہ الیکشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارچ سے پہلے مارچ میں ایک انٹرم بجٹ پاس ہوا تھا جس میں ہمارا پورا بجٹ نہیں تھا، تو ابھی پورے بجٹ کچھ دن پہلے ہمارا بجٹ پاس ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی جب یہ آ جائیں گے، ہم نے اپنے طرف سے پورے ہمارے جتنے بھی انجینئرس ہیں سب کو پورا یہ کر کے رکھا ہے، پورے مطلب ٹینڈرنگ پروسیس وہ سب تقریباً تیار ہے۔ تو جو فنڈ آئیں گے اس میں ہم انشاءاللہ جلدی کام شروع کریں گے۔ ایک ہو گیا، یہ دوسرا ہمارے بہت سارے کام ایسے تھے جن کا ایڈمنسٹریٹو اپروول سے بہت زیادہ جو آن گوئنگ ورکس تھے وہ زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اس میں کسی میں تو 200% سے زیادہ بھی بڑھ گئے، کسی میں 300%، کسی میں 50%، کسی میں 20%۔ تو ہم نے اس میں بھی 2-3 بار میٹنگ کر کے، جس میں ہمارے آنریبل ای سی صاحب تھے، ہمارے ایس سی چیف انجینئر اور ڈی سی صاحب سب تھے، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ زیادہ اس میں اے سے بڑھ گیا تو وہاں پہ یو ٹی لیول پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس سال ہم نے یہ کیا جو 25% کے اندر ہوں گے اس کو وہ لوگ کو اسی آن گوئنگ میں لے لیں گے۔ جو 25% سے اوپر ہوگا اس کو ہم سیکنڈ سٹیج کر کے، وہ اس سال ہی مطلب کام تو کنٹینیو رہے گا ہمارا، اس کو سیکنڈ سٹیج کر کے، کیونکہ جب آپ کے اتنے % سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نئے کام کے اس میں ہم نے دے دیا ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے، خاص کر جو ہمارے ہسپتال وغیرہ کا ہے، ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہسپتال کا 2-3 آپ فلور بناتے ہیں، 2-3 سٹوری بناتے ہیں، ہم نے کہا کم سے کم جہاں پہ ہسپتال ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر یا ہیلتھ سینٹر جہاں پہ پرائیویٹ مکان میں رکھے ہوں یا جہاں پہ پرابلم ہو، ان کو ہم نے کہا ہے کم سے کم گراؤنڈ فلور والا پورا فرنش کرے، اس میں بجلی ہو، پانی کا ہو یا باقی جو بھی فنیشنگ کا کام ہو وہ اس میں کرنے کے لیے بولا ہے۔ ہمیں امید ہے وہ جلدی اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور باقی جو بچا ہوا کام ہے وہ سیکنڈ سٹیج میں ہم لینے جانا ہے۔ اس طرح سب بلڈنگز کا ہم نے کہا ہے جو کر سکتے ہیں، جہاں پہ ایمرجنسی ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ وہ
ग्राउंड फ्लोर या कुछ हो वो कंप्लीट करके ताकि लोगों को सर्विस उससे दे पाए। उस पर इंशाल्लाह सब पूरी तरह तैयार है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम नवंबर-दिसंबर तक पूरा जो हमें अलॉटेड फंड होंगे वो पूरा खर्चा करेंगे। मैंने ये भी बोला है हमारे एसीज को 20 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो रिव्यू मीटिंग लेते बैठे, तो उससे क्या होगा फिर हम कहाँ पे हमारा खामी है उसको इंशाल्लाह हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। सर SDP स्कीम के तहत अब तक फंड्स वागुजार नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है और कब तक फंड्स वागुजार? ने आपको कहा कि SDP वाले तो हमने अभी रिसेंटली स्कीम भेजे हैं, तो सबका मेन ये था इस साल हमारा बजट, आपको पता है बड़े बजट सेशन कुछ दिन पहले 24 तारीख के बाद शुरू हो गए, तो हमारा लद्दाख के लिए बजट आपको पता है 2-3 दिन पहले हमारा लद्दाख का बजट के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हो गया है, तो ये फिर उसमें मिनिस्ट्री में जाएंगे, फिर वहाँ से आने में 1-2-3 कुछ दिन तो लगेंगे, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि SDP के भी बजट हमें अलॉट हो जाएंगे। सर दीगर स्कीमों में फिजिकल व फाइनेंशियल अचीवमेंट की शरह आज की तारीख में क्या है? हमारे जो ऑनगोइंग वर्क्स है आज के जो फिजिकल अचीवमेंट है हमारा जो ऑनगोइंग वर्क्स है उसमें तकरीबन 50% से ऊपर है जो ऑनगोइंग, जो जिसको मतलब आपके 25% या जो हमारे AA के अंदर जो है, जो AA के 20 या AA से ऊपर गया है उसका तो कुछ दिन पहले ही हमने ये कहा है कि उनको उसमें सेकंड फेज़ में डालने के लिए, बाकी जो AA के अंदर है उसका मेरे ख्याल में बहुत सारों में तो 50% से भी 50, 60, 70% पे भी, कहीं तो 90% पे पहुँचे। सर क्या करगिल को मुख्तस फंड्स पूरा खर्च होगा? इंशाल्लाह मुख्तस फंड तो खर्च होगा और मैं चाहूँगा हमारा ऑनरेबल LG साहब से मेरा अपील भी है और UT एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम चाहेंगे हमको फंड और ज़्यादा दे दे, और मुख्तस फंड का तो आपको पता है पिछले साल भी 2-3 महीने का इलेक्शन का हो गया था, फिर भी हमने हमारे तकरीबन 99 से भी ऊपर हमारा फिजिकल जो खर्चा था बजट का वो हो गया था, और मुझे इस साल भी उम्मीद है इंशाल्लाह हम पूरा जो बजट हमें अलॉटेड बजट है वो पूरा खर्चा कर पाएंगे। सर बजट पे क्या कहेंगे आप लद्दाख के जो 6000 करोड़ रुपए हैं? नहीं, बजट पे ये है, ये 5000 कुछ 700 कुछ करोड़ का उन्होंने ये किया सही वो हो गया हमारे लिए बजट अलॉट हो गया, और ये है आप सब जानते हैं कि हम पहले से शुरू से ही कहते हैं कि जो हिल कौंसिल दोनों को जो बजट मिलते हैं हमें एक तो कैपेक्स में ही मिलते हैं, रेवेन्यू कंपोनेंट हमें आते नहीं है, तो उसमें भी हमें दोनों को मिला के 333-40 के आसपास 333-40 करोड़ के आसपास आते हैं हम ले हिल कौंसिल को भी और करगिल हिल कौंसिल को भी, तो उसमें ये है कि वो तकरीबन टोटल बजट का ले और करगिल मिला के 10% होता है, आप लोग खुद निकालिए 5700 या 800 कुछ करोड़ में से हमें 10% ही हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदों के पास खर्चा करने के लिए देते हैं। हम गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे लोगों के नीड है, कहाँ पे हमें प्रायोरिटी फिक्स करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम खर्चा मतलब हमें फंड ज़्यादा मिलना चाहिए। और एक चीज़ ये हो गया हमारे LG साहब ने एक चीज़ ये किया है, पहले तो क्या होते थे जो भी DPR बना के सबमिट करते थे वो वहाँ से ले से या वहाँ से होके आते थे। इस साल मैंने बार बार कोशिश के बाद इस साल ये हो गया है जो भी DPR वगैरह जो भी प्लान जाएंगे वो यहाँ से हमारे हिल कौंसिल से वेट होके ही जाएंगे, तो उसी को ही कंसिडर करेंगे जो हिल कौंसिल का वेट किया हुआ, तो मुझे उम्मीद है हमारे उसमें थोड़ा प्रायोरिटी का फ़र्क पड़ेगा। सर कुछ अवामी मसाइल की तरफ आते हैं। सर नेशनल हाईवे 301 के पर आप जानते हैं कि ज़िले करगिल का सबसे बड़ा गुंजान आबादी वाला इलाके का सड़क है और साथ ही साथ इस सड़क पे काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता है, तो सर सुनने में आया है कि जो 35-40 फुट का जो चौड़ाई था अब उसको कम करके फिर 35 तक महदूद कर दिया है, तो क्या सर आने वाले दिनों में इस सड़क पे ट्रैफिक को लेकर मुश्किलात का सामना नहीं होगा? इस पे देखिए इस पे ये है, मैं बार बार
NSDCL والوں کے ساتھ بہت ساری میٹنگ کی ہمارے، جس میں ہمارے ڈی صاحب بھی تھے. پھر ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان سے بھی بات کیا کہ میں پوری طرح سیٹسفائیڈ نہیں ہوں جو یہاں کے خاص کر زیرو سے 30-35 تک کا جو ہمارے روڈ کا لینتھ ہے. اس میں ہم نے بات کیا تھا کہ اس میں کہ کسی جگہ پہ 18 میٹر لیا ہے، کسی جگہ پہ 12 میٹر ہے، تو کسی جگہ پہ 10 میٹر کے آس پاس لیا ہے. تو اس میں ایک جگہ ہم نے 2-3 جگہ پہ میں خود گیا، میں 2 بار گیا ہوں. تو ہم نے، آپ یقین نہیں کرو گے، بہت ساری جگہوں پر میں نے خود پھیتا لگوا کے وہاں دیکھا ہے. تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہے، میں نے دیکھا 33 فٹ، 35 بھی نہیں ہے، 33 فٹ، 10 فٹ کا، 10 میٹر کا تقریباً 35 فٹ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے اس میں انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنائے ہیں. تو جہاں پہ ایک یہ ہے جہاں پہ انہوں نے کم جو ویڈتھ لیا ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بلڈ اپ ایریا میں آپ 10 میٹر ہی لیں گے بول کے. باقی جب بلڈ اپ ایریا کے بغیر جو بلڈ اپ ایریا کا ان کا اس میں انہوں نے یہ ڈیفینیشن دیا تھا کہ بلڈ اپ ایریا کر کے کہ انہوں نے وہ کیا ہے، ڈیفینیشن ایک دیا ہے. اس میں یہ ہے جہاں پہ نیرو ویلی ہو، اور جہاں پہ ایک تو نیرو ویلی ہو اور جہاں پہ لینڈ اویلیبلٹی نہیں ہو. خاص کر ہمارے ٹی ایس جی بلاک میں یہاں ٹرسپون سے لے کر وہاں تک آپ کے ہمارے طالبان سامپو تک لینڈ اویلیبلٹی کا ہمیں کوئی خاص ایشو ہے نہیں. لینڈ بھی ہمارے پاس نیرو ویلی بھی نہیں ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم 10 میٹر وہ لے کے بلڈ اپ ایریا کے لیے 2.5 فٹ چھوڑ رہے ہیں اس ایریا میں، جیسے ٹسپون سے وہاں سیلسٹ فوڈ تک ایریا میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ 2.5 فٹ ادھر چھوڑ وہ، تو میں نے کہا وہ کب بنائیں گے آپ؟ کہتے ہیں وہ بعد میں اس کو فینسنگ جیسا کر کے رکھے گا. میں نے کہا جب آپ کا سیلسٹ فوڈ کا آدھا میں آپ نے یہ 40 فٹ لیا ہے، ادھر اس سائڈ کو 35 فٹ لیا ہے، آگے جا کے ہمارا 60 فٹ لیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا وہاں سے ہی پہلے ہمارے ایز ویل جو ہمارے کونسل تھے، ڈی صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ سب انہوں نے بنا کے دیا، ان کے پاس کاغذ بھی کچھ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسی ایریا میں ایک گاؤں میں بلڈ اپ 1-2 آپ لوگوں نے پیرامیٹر لیا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس میں بھی 40 فٹ لیں گے کر کے نا. اور کہیں کہیں جگہ پہ تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ روڈ ہے، ایگزسٹنگ روڈ میں سے بھی کم کیا ہوا ہے. اس کا ثبوت ہی وہاں ہے، میں نے ان کو وہ ثبوت بھی دیا ہے. جو پہلے پرانے ڈنگے ہیں ادھر ہے، اس کے اندر لا کے انہوں نے، میں نے کہا اس میں آپ اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا لینڈ ہے، آلریڈی پیمنٹ کیا ہوا ہے، آپ آلریڈی ہمارے سڑک کا حصہ ہے. اس سے بھی بہت سے جگہوں پہ انہوں نے کم کر کے دیا. تو یہ ہم نے ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے ڈی صاحب کو بھی بولا ہے، جو چیئرمین ہے اس کا NSDCL کے، خاص کر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کالا بولتے ہیں، کمپیوٹر اتھارٹی جو ہے ڈی صاحب ہے، ان کو بھی بولا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ یہ جو بوٹل نیکس جہاں پہ رہا ہے نا، وہ مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ کام کریں گے. میں نے ریسنٹلی 2-3-4 دن پہلے ہی میں خود گیا تھا، اس میں ان کے NSDCL والے بھی تھے، پھر ڈی صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا، ان کے انجینئرز کچھ تھے. سر یہ سمگرا شکشا اسکیم کے تحت اساتذہ کی تنخواہ تقریباً 5 مہینوں سے بند ہے. کہتے ہیں کہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ سیلری نہیں دے پا رہا ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ اس میں ایسا ایشو ہے دونوں. دیکھیے آپ یقین نہیں کرو گے، اس کے لیے میں دہلی جا کے، میں نے دہلی میں ان کے منسٹری میں، ایجوکیشن منسٹری کے جو ہمارے انڈیا کا سب سے ہائیسٹ وہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ ایجوکیشن کا ہے، سیکٹری ایجوکیشن، پھر ان کے جو اکنامک ایڈوائزر، ان سب سے میٹنگ کر کے یہ جو سماگرا کا ہو یا ہندی ٹیچر کا ہو یا بودھی ٹیچر کا ہو یا باقی چیزوں کا جو بھی یہ سیلری کا ہے یا آپ آنریم کا ہے، وہ آتے ہیں کیونکہ ایک بڑا اسکیم ہے. اس اسکیم میں آپ کا کنسٹرکشن کا بھی ہے، وہ بھی ہے، سیلری ایک پارٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا، پہلے ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہیں پہ کچھ خامی تھا، کیونکہ ان کو ایک پلان بنانا ہوتا ہے پورا فار دی ایئر جیسے 2024-25 کے لیے. تو وہ خامی کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک بار پھر واپس بھیج دیا.
फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारा 2.5 महीना तो आपके इस इलेक्शन में रहे, उसमें कुछ काम नहीं हो पाए, फिर उसके बाद उसमें कुछ और खामी थे, फिर वापस भेज दिया, फिर वो सब करके अब अल्लाह का शुक्र है ये रिलीज़ हो के मेरे ख्याल में अब तो सबको हमें ऑनरेबल मिला भी है। उसमें हमने एलजी साहब के लेवल पे भी, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी का भी, हमारे एमपी साहब ने भी यहाँ पे यूटी लेवल पे उठाया था, सब ने मिल के बहुत मेहनत करके अब अल्लाह का शुक्र है ये सब जितने भी हमारे टीचर्स उसमें लगे हैं तो उनको से ऑनर मिला है आज की डेट में। सर अगस्त के ख़ासकर जुलाई और अगस्त में ज़िले करगिल के मुख्तलिफ़ मकामात पर ये सैलाब का ख़तरा रहता है और हाल ही में एडवाइज़री जारी कर दी है। तो सर जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल स्तप्पा नाला, संको नाला, संगरा नाला और खाउस नाले में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से खाउस में तो कई घर बेघर भी हुए थे। तो और उस वक़्त हिल काउंसिल के चेयरमैन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को यकीन दिलाया था कि बहुत जल्द इन नालों को, क्योंकि नाले भर गए हैं तो नालों की सफाई, नाला ट्रेनिंग होगी, लेकिन अभी तक नाले की सफाई के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं हुआ है। तो हिल काउंसिल की तरफ से क्या इक़दाम होंगे? और खुदा न खास्ता इन दिनों में कोई सैलाब का अगर कहीं पे सैलाब का ख़तरा रहता है तो किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए इसमें आपको पता है नाला ट्रेनिंग ये 1-2 करोड़ का हमारे कैपेक्स में बजट में से होने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बजट से ये मतलब को होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम 5 करोड़ तक ही उसमें सेंक्शन करा सकते हैं हमारे कॉम्पिटेंसी में जो। इसलिए हमने संगरा का 2 नाला ट्रेनिंग हो, खाउस का है, स्टप्पा का, उन सब का एक डीपीआर बना के हमने ये भेजा था, साना का भी भेजा था, साना का तकरीबन हो के आया। इस तरह ये खाउस का भी हमने रिसेंटली भेजा है, और स्तप्पा का भी हमने कहा है, जहाँ पे उधर शक्कर साइड का भी है। तो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है हमने उनको कहा है कि हम एसडीपी में हमने रिफ्लेक्ट किया है, और हमें उम्मीद है कि देर बदेर वो ये वहाँ से सेंक्शन होके आएंगे। ये एक हो गया। दूसरा, हमने डिज़ास्टर्स के लिए हमारे डीसी साहब ने 2-3 बार मीटिंग भी किया, और हमने भी मीटिंग किया। हमने कहा डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए सिर्फ ये सैलाब का नहीं है, कहीं कहीं जगह पे जैसे ड्राई मौसम की वजह से घास वगैरह या जिसमें पाउडर वगैरह उसमें और वो फसल हमारे पूरी तरह ये हो गए, तो उसमें इंशाल्लाह हमने जैसे आपका ये हुंदुर मब्रोक वगैरह है, उनको मैंने खुद तो जाके वहाँ पे अपने अनटाइड फंड में से बाकी में से कुछ रिलीफ की सूरत में उनको ग्रास वगैरह लाने के लिए, हमारे यहाँ सुद में भी इंशाल्लाह हम उनको भी कुछ कंपनसेट करने जा रहे हैं। फिर डीसी साहब के लेवल पे भी, फिर हमने हमारे थसगाम के ललू है उसमें हमने कहा है कि उनको हम ग्रास वगैरह ये दे देंगे उनको, मतलब थ्रू डिपार्टमेंट से। तो उन सब पे जो जहाँ पे हमने कहा है कि सबको हमने तकरीबन तैयार रखा हुआ है कि खुदा न खास्ता ऐसा तो होना नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमें उम्मीद है न सिर्फ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, न सिर्फ हमारे कौंसल, बल्कि हमारे जितने भी वॉल्टियर्स है, आपको मालूम है, या SDRF है या पुलिस वाले है या जो भी हो, इंशाल्लाह हम सब पूरी तरह कहीं पे अगर कुछ एवेंचुअलिटी होता है तो उसके लिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रखा है। तो उसके लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ऑनरेबल एलजी साहब से बोला है कि हमें इस डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए हमें कुछ स्पेशल फंड देने के लिए, तो उस पर काम चल रहा है। अभी तक तो नहीं आया, मुझे उम्मीद है उसमें से भी हमको कुछ फंड आ जाए। तो वैसे उसमें क्या कहते हैं, जो डिज़ास्टर कहीं होता है तो इंशाल्लाह हम उसमें अपनी तरफ से भी, काउंसिल की तरफ से भी जो बन पाएगा इंशाल्लाह वो करेंगे, और यूटी लेवल पे भी हमें उम्मीद है पूरा सपोर्ट मिलेगा हमें ऑनरेबल एलजी एडवाइज़र साहब और बाकी जितने भी हमारे सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं। सर आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे सर, जो यूटी आने के बाद हिल काउंसिल के इख्तियारात में क्या आपको कमी देखने को मिल रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या हिल काउंसिल की तरफ से क्या कोशिशें होंगी, क्या इक़दाम होंगे इनके इख्तियारात को बहाल लेकिन करने? हिल काउंसिल ये यूटी आने के बाद ये बिल्कुल सही है कि हिल काउंसिल के इख्तियारात में बहुत कमी आई है।
हिल कौंसल आप के ट्रांसफ़र करना भी हमारे लिए कुछ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टाफ उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। पहले आपका फंड जो भी हो, चाहे 10 करोड़ हो, 20 करोड़, 100 करोड़ हो, वो नॉन लैप्सेबल होता था। तो नॉन लैप्सेबल होने से क्या हो जाता था, हमारा अगले साल हम आराम से अपना काम शुरू कर सकते थे। अब दिखाते हैं हमें 500, 700, 600 करोड़ के आसपास, मगर फिर बाद में ये 6,000, 4,500, 600 नहीं, 500, 600 नहीं, 5,700 के करोड़ के आसपास हमें जो बजट आया है, तो वो बाद में अगर खर्चा नहीं हो गया तो वापस चले जाते हैं। तो और हमारे हिल कौंसिल के जो पहले हिल कौंसिल को 10-20 करोड़ तक का सेंक्शन करने का ये था, तो आज तो होता नहीं। और आज से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कोई भी छोटा सा कागज़ होगा ना, यूटी लेवल पे भी नहीं होता, उसको होम मिनिस्ट्री में भेजना पड़ता है। फिर होम मिनिस्ट्री में जो होम मिनिस्ट्री के उसमें वो हो, नहीं तो बाकी डिपार्टमेंट, बाकी जो ये क्या कहते हैं, बाकी जो हमारे विभाग है, एजुकेशन का हो या बाकियों का हो, उनमें भेजते हैं, तो बहुत उसमें टाइम लग जाता है। ये दूसरा तीसरा ये हमारा कि हिल कौंसिल के जो लैंड जो हमारे उसके पावर्स थे वो भी तकरीबन कम हो गए हैं। जैसे पहले हम लीज पे वगैरह वो सब कौंसिल लेवल पे करते थे, आज फिर यूटी लेवल पे जाता है। तो इस तरीके से। और बाकी आप जानते हैं कि हमारा आज के दिन में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी हायर कई में हमारा ऑनरेबल एलजी साहब सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद एडवाइज़र साहब, फिर कमिश्नर सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी वगैरह होता है। तो और इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमारा ये होता है कि हमारे डीसी साहब जो है वो कौंसिल का सीईओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। आप जानते हैं यूटी आने से वो आज के दिन में हमारे डीसी साहब को सेक्रेटरीज का भी सुनना पड़ता है, कमिश्नर सेक्रेटरीज का भी, एडवाइज़र का भी, फिर एलजी साहब का, फिर हमारा। तो ये काम में हमें बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इस तरह से और भी इशू है डेवलपमेंट फंड, बाकी फंड्स को भी लेके अब हार्डली हमें 10% मिलते हैं दोनों कौंसिल को जो टोटल बजट का, तो वो भी इशू है। तो इंशाल्लाह हम उस सब पे काम कर रहे हैं। रिसेंट मैं दिल्ली जाके 2 बार होम मिनिस्ट्री में जाके उनको वहाँ पे जो हमारा हाई पावर कमेटी का मीटिंग में भी मैंने उठाया था, उनमें मेमोरेंडम भी दिया था। फिर उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर जो क्या होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया। इसमें वही कि कौंसिल के जो पावर्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की, फंड्स का, सबका। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब द्रास आए थे, हमें बहुत उम्मीद था कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ एक अनाउंसमेंट करके जाएंगे, मगर सिर्फ वो फिर इमोशनली वही कि बार बार सब कहते हैं कि वहाँ से ईरान से आपके ये क्या कहते हैं उसको, ज़ायरीन को लाया। और दूसरा होता है श्रीनगर में ये हमने आज़ादारों का जुलूस पे पाबंदी उठाया, उसके अलावा उन्होंने करगिल के बारे में कुछ नहीं कहा। हमें उम्मीद था कुछ न कुछ, जैसे हमारा एयर सर्विस है, जब से ये हमने होश संभाला तब से ये हमारा डिमांड है। और हमारे क्या कहते हैं उसको, कुर्बतन का प्लाटो है वो खाली करने के हमने कहा तब से, हालांकि इसमें एमओयू भी हो गया है, अभी भी खाली नहीं कर रहे। वो सब छोड़ के हम सोचते थे कि करगिल को अभी जैसे डिग्री हमें मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है, हम चाहते थे मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक नहीं हुआ है। हम चाहते थे कुछ यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं ले में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है। आपने कल देखा होगा कि ये हमारा एयरपोर्ट का जब बोला, हमारे मंत्री जी को ये पता नहीं ये थ्योस नुब्रा कहाँ है, ज़ांस्कार कहाँ है। नुब्रा तो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर है, उससे तो हमें 200 किलोमीटर से है। अच्छा, ज़ांस्कार है हमें 200 कुछ किलोमीटर हमारा दूर है। वो कहते हैं वहाँ पे हमारे वाले बात को ना गोल फिर घुमा फिरा के फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं, जबकि हमारे पास और भी ये हमारे पास रास्ते हैं एयरपोर्ट के लिए, और भी हमारे ऑप्शन बहुत है। जब चलो हमारा का वखा का आपका
उसमें नेगेटिव रिपोर्ट है, तो हमारे पास और भी ऑप्शन बहुत है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप संजीदगी से उस पर गौर करेंगे, हमें कम से कम एक सिविल उस पर जहाज़ देने के लिए काम करेंगे। इसी सिलसिले में मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात किया। मैंने कहा सर हमारे सर्दियों में न सिर्फ हमको बल्कि आपकी आर्मीज़ को भी प्रॉब्लम होता है, उनको ले जाना पड़ता है, फिर ले में ट्रांजिट कैंप में ठहरना है, फिर बाकी आने जाने का खर्चा फ्यूल का वो सब ले दे के हमने कहा कि आप एक जॉइंट वेंचर आर्मी और सिविलियन का हम सबको मिला के एक एयरक्राफ्ट या एक जहाज़ का वो कर दीजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है अब अल्लाह की फजल से हमारा पार्लियामेंट में MP साहब है, वो भी हमारा आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब ये करके हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम बिल्कुल अपने फ्यूचर को लेके बहुत क्या मज़बूत उसके हिसाब से चल रहे हैं। मैं उम्मीद है। और इस सिलसिले में मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं कि मैंने एक सर्कुलेट कराया है कि 2047 तक हमारे करगिल का चाहे डॉक्टर जाफ़र रहे ना रहे, कोई AB रहे ना रहे, मगर करगिल तो रहेगा। करगिल हमारा आज भी है, इंशाल्लाह कल भी है। हम चाहते हैं कि हम अपने वैल्यूज़ को इंटेक रख के, जो इस्लामिक वैल्यूज़ है, बाकी वैल्यूज़ है, उनको इंटेक रख के हम करगिल को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे दे पाए। इंशाल्लाह मैं सब स्टेक होल्डर्स से बोला है, उसमें आप लोग भी हमें कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो उस पे हम काम करने हैं, उसको हम एक विज़न डॉक्यूमेंट की तरफ बना के एक हमारे लिए गाइडलाइंस बनेगा, उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम चलने की कोशिश करेंगे करगिल के डेवलपमेंट को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर जाफ़र आख़ून, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल, जो करगिल के तरक्याती उमूर पर वाइस ऑफ लद्दाख के साथ तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।